In the last class, we were discussing about a rounding of the numerical results or significance figures and all. We'll discuss about these things. Okay, in this lecture, we will discuss about what is Dalton's atomic theory. So, Dalton was basically is a teacher. In 1808, Dalton was the first person who proposed the atomic theory, which will describe that what is an atom. And according to him, he devised a word called as atomia, the meaning of which is indivisible. Indivisible matlab atoms cannot be divided further. The meaning of which is matter is always consist of इंडिविजिबल एटम्स मतलब क्या है कि आप एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बट फर्दर स्टडी से पता चला दैट एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम एटम एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री थिंग्स वन इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम इज मेड अप ऑफ electron, proton, and neutron. Very first time in 1808, Dalton proposed a system of chemical philosophy, and he said the very first thing that matter is made up of indivisible atoms. Indivisible matlab which cannot be divided further. B. All the atoms of a given element have identical properties, including identical mass. Means अगर किसी एटम का मास सेम है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी. एटम्स जो सेम टाइप के एलिमेंट से बने हुए हैं उन एलिमेंट्स में आपके पास अगर सेम मास है तो प्रॉपर्टीज सेम होगी, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. और कंपाउंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स combine in a fixed ratio. Okay, now Dalton's also proposed that how a chemical reaction occur. Chemical reaction कैसे होती है? The chemical reaction involves reorganization of atom. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. According to Dalton, that only reorganization of atom takes place in a chemical reaction, but after that most of the people find out that the chemical reaction is due to breaking and making of bonds. Next, Dalton's theory could explain the laws of केमिकल कम्बिनेशन मीन्स डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका कंक्लूसिवली दिस कैन एक्सप्लेन ऑल द फोर लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन विच वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लासेस. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड Gay-Lussac law of gaseous volume. It's not 4, it's 5. And the Avogadro's law, which we have discussed in last class, states that equal volume of all gases at similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules, which we have discussed in last classes. So this is Dalton's theory, in which very main focus is that atom is a indivisible particle. Matter is always made up of atom, and atom is indivisible, but which cannot be divided further. Next, we move on to atomic and molecular masses. Okay, what is atomic and molecular mass? Atomic mass is the mass of atom, and it is reported as atomic mass unit. And one atomic mass unit is the mass exactly equal to 1 by 12th of mass of one carbon 12 atom. Means what? जो कार्बन 12 एटम का मास है उसका 1 by 12th जो मास है ना वो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है. और हम किसी भी पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसके मास को या फिर एटम है उसके मास को इन एटॉमिक मास यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट. मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास इज द मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट. जैसे अगर मैं H2O की बात करता हूँ तो वाटर में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है. 2 हाइड्रोजन के लिए मास 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 16 हो जाएगा, तो टोटल मास 18 हो जाएगा. भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मूला यूनिट मास? इट इज़ द मास ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है, भाई कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसके मास को आप फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हो. इट इज equal to atomic masses of ions present in the molecules. Okay, next is
व्हाट इज मोल कंसेप्ट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इस मोल कंसेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज the quantity we used for measuring the amount of substance. So amount of substance को आप कैसे measure कर सकते हो? One of the most important thing for calculation of amount of substance is आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए. इफ वी हैव समथिंग कोल्ड एज 1 डजन मीन्स व्हाट? 1 डजन मतलब 12 क्वांटिटीज, 12 इन नंबर. वैसे ही मोल क्या होता है? मोल जो है वो आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है. और एक मोल जो है उसका मास कितना होता है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द मास ऑफ और मोलर मास ऑफ एटम. जैसे कि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. इसमें लिखा हुआ है दैट द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन as many elementary entities as there are atoms in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12. इसका सिंबल मोल होता है. इसका मतलब क्या है कि जितना मोलर मास है ना किसी कंपाउंड का, उतना ही उसके मोल है. जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास 18 ग्राम वाटर है तो उसके मोल्स क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे. अगर 36 ग्राम वाटर हो गया, 36 ग्राम वाटर मतलब कितने मोल्स हो जाएंगे? 2, क्योंकि आपके पास जो 18 ग्राम है उसमें 1 मोल है, 36 में 2 हो जाएंगे. ओके. ऐसे ही मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? मोल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं भाई 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. ओके. एक मोल में जो वॉल्यूम है वो कितनी होती है? 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है, एसटीपी. अब एसटीपी क्या होता है? एसटीपी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस होते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा. तो अब तक हमने पढ़ा दैट 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास and 1 mole is equal to number of Avogadro number of molecules, which is 6.022 into 10⁻23. Okay, and 1 mole is also equal to 22.4 liter of volume at STP. Next we move on to what is standard temperature and condition pressure. The standard temperature is the temperature at which water freezes, which is 0 degrees Celsius. And the pressure we used, what is atmospheric pressure, is 1.0 atmosphere. So standard temperature and pressure is 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. Next is what do you understand by mole concept. में जो मैंने अभी बताया उसको मैंने एक पिक्चर में लिखा हुआ है that 1 mole as shown in this particular first picture, that 1 mole is equal to particles कितने होंगे 1 mole में? 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल. अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो आप कैसे निकालेंगे? जितने आपके पास पार्टिकल्स गिवन हैं उसको कितने से डिवाइड कर दोगे भाई? 6.022 into 10⁻23. अब मोल्स किसके इक्वल भी होता है? मोलर मास जो है उसके इक्वल मोल होता है. तो अगर आप मास जो आपके पास है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. इसको ऐसे समझो, जैसे अगर आपके पास 36 ग्राम ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर है. ओके, 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होने चाहिए? आप क्या करोगे? 36 ग्राम को उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दोगे. और मोलिकुलर मास कितना है उसका? 18. तो कितने मोल्स आ जाएंगे भाई? 2 आ जाएंगे. तो 1 मोल मोलर मास के बराबर होता है. वॉल्यूम कितनी होती है भाई? 22.4 लीटर एट एसटीपी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड मोल कंसेप्ट आल्सो. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है किसी भी एटम्स का कंपाउंड में. अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के सिंपल होल रेशियो का आपने पता करना है तो वो आपको कौन बताएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएगा. और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स बताता है. इसको आप ऐसे समझिए, अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ तो ग्लूकोज होता है C6H12O6. अब इसका रेशियो क्या है भाई? 6:12:6. नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2:1. बट
the simple whole number ratio 1:2:1 is called as empirical formula. Exact number of molecules और exact number of atoms जो present है वो हमें कौन सी चीज़ बताता है, वो molecular formula बताता है. So molecular formula, as I have written here, shows the exact number of different type of atoms present in the molecules. If the masses percent of various elements, अगर mass percent, if mass percent of various elements are present in the compound is known, its empirical formula can be determined. अगर हमारे पास भी मास परसेंट गिवन है तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल रहेगा भाई, अगर मैं किसी सिंपल होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिसको हम कैलकुलेट करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के कुछ मेथड्स हैं. So now we will discuss what are the methods for calculating of or steps for calculating of empirical formula. सबसे पहले आपके पास मास परसेंट गिवन होगा. अब आपको ये भी पता होना चाहिए मास परसेंट क्या होता है. This thing we will discuss in next few videos. मास परसेंट वैसे मैं आपको बता देता हूँ. मास परसेंट होता है भी, अगर मैं बात करता हूँ कि 10% कोई सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है 10 ग्राम आपके पास सोल्यूट है और 90 ग्राम सोलवेंट, और टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम. 10% है तो 10 ग्राम 100 ग्राम में है, 20% है तो 20 ग्राम 100 ग्राम में है, अगर 30% है तो 30 ग्राम 100 ग्राम में है, तो उसको आप बोलते हो मास परसेंट. हम कंसंट्रेशन को लिखते हैं इससे. स्टेप नंबर 2 क्या है, आप मास को नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर दीजिए. आपको मास परसेंट से ये पता चलेगा भी मास कितना है 100 ग्राम में, उसको आप नंबर ऑफ मोल्स में कैसे चेंज करोगे, जितना मास है उसे कितने से डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो. अब जो मोल्स आए हैं, जो सबसे कम मोल आए हैं ना, उन सारों को, जो आपके पास मोल्स हैं उनको सबको डिवाइड करते जाओ. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको डिवाइड करते जाओगे. अब इफ द रेशियो अगर होल नंबर है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको एक मल्टीपल से, जैसे अगर रेशियो आ जाता है 1:1.5:1, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भी. 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1.5 × 2, तो आपके पास किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपने जो आपके पास क्या दे दे, सिंपल होल नंबर दे दे. तो 2:3:2 आ जाएगा उसके बाद. तो उसके बाद आप एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दीजिए विद द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स. इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इजी समझा सकता हूँ. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एग्जांपल. एक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का जो फॉर्म हो रहा है भाई, उसमें 4.151 ग्राम एल्यूमिनियम है और 3.692 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का. तो मास आपके पास इसमें सीधा गिवन है. अगर मास परसेंट गिवन होता तो 4% और 3% या 5% या 6% गिवन होता तो आप उसे 5 ग्राम मान लेते सीधा ही. 5 ग्राम वो 100 ग्राम में है, ठीक है. तो मास परसेंट आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. कैसे आ जाएंगे, आप मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो. अब मोलर मास एल्यूमिनियम का 26.98 होता है, 27 होता है अभी अप्रोक्सीमेटली, और ऑक्सीजन का होता है 16. डिवाइड करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 0.15 और 0.23 आ गए. नेक्स्ट आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को जो कम मोल है उससे डिवाइड करना है. 0.15 और 0.23 में से कम कौन से हैं, 0.15. डिवाइड करोगे तो भाई एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 1.5. नाउ आपने क्या करना है, 1 और 1.5 को सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 1 को 2 से 2 आ जाएगा, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो द कंपाउंड हैज 2 एल्यूमिनियम एटम और 3 ऑक्सीजन एटम. तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा अभी, Al2O3 आ जाएगा. सो ऐसे हम किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए अगर आपके पास मास गिवन है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट. अभी इसको आप ऐसे समझो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग बाय जस्ट गिविंग बाय एग्जांपल, कि आपके पास एक साइकिल फैक्ट्री है और उस साइकिल फैक्ट्री में डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं साइकिल के. अब
एक जगह पूरी साइकिल असेंबल होती है, तो डिफरेंट जो पार्ट बनते हैं, मान लिया कि आपके पास उस साइकिल के जो डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं कि उसका जो एक्सल है वो कि कंपनी एक बार मैन्युफैक्चर कर रही है, अलग अलग पार्ट्स बना रही है, तो एक्सल उन्होंने एक बार ही 5 बना दिए और सारी चीज़ों की क्वांटिटी 6 कर दी। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी प्रोड्यूस हो सकती हैं? 5 ही हो सकती हैं। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि एक्सेल की जो क्वांटिटी थी वो 6 कर दी, लेकिन और सारे पार्ट्स की क्वांटिटी 5 करने के बाद 5 ही साइकिल प्रोड्यूस हुई। जो और सारी क्वांटिटीज 5 है ना, वो डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी साइकिल बन रही है। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में होता है। कई बारी किसी केमिकल रिएक्शन को पूरा होने के लिए आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट नहीं होता, तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो रिएक्शन को अपने हिसाब से एडजस्ट कराता है, उस पर्टिकुलर रिएजेंट को आप लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हो। मैनी ए टाइम, जैसे मैंने इसको लिखा हुआ, मैनी ए टाइम द रिएक्शंस आर कैरिड आउट व्हेन द रिएक्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन अमाउंट्स रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। एक एक्सेस अमाउंट में होता है, दूसरा लेसर अमाउंट में होता है। जो लेसर अमाउंट में होता है वो कंज्यूम हो जाता है, एक्सेस वाला रहता है। जो कंज्यूम हो गया और जो लेस अमाउंट में है उसको आप कौन सा एजेंट बोलते हो? और जो लिमिट करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट? कि कोई जो एजेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो हम कैसे कैलकुलेट करें? आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे भाई। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड आप यूज करते हो। आपने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप क्या करोगे, सारों को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे अगर आपके पास मास गिवन है तो। ठीक है, अब इनका मोल रेशियो निकालोगे। अब कंपेयर करोगे कैलकुलेटेड रेशियो को एक्चुअल रेशियो से। अब यूज द अमाउंट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, तो जो अमाउंट आपने लिमिटिंग रिएजेंट का निकाला है ना, उससे आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, और जो एक्सेस में अमाउंट बचा है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज, okay, now we are concluding our session there. Next I'll try to give you an example of how we can calculate the value, or how we can calculate in a reaction which one is limiting reagent. Thanks a lot.